Today we will be discussing about pollination, and basic of pollination we have already discussed previously. So what is a pollination? Pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma, correct? From anther to stigma. So this is anther, from anther to stigma, the pollen is transferred. That itself is called pollination. So pollination is a simple morphological, or you can say a simple physical process in which a pollen grain is going to sit on the stigma. There are three types of pollination. Okay, one is autogamy. Auto means self, okay, and gamy means marriage. So autogamy means self marriage. That is nothing but if the pollen of a flower falls on the stigma of the same flower, okay, so that will be autogamy. Now it is a functionally and genetically it is a self pollination. Is it correct? The statement is correct? Yes. Okay. Now the other type of pollination is called gaetogamy. Gaetno means neighboring. So neighboring means the pollen of a flower falls on the stigma of another flower of the same plant. Okay. So plant, flower, another flower. So pollen from one, but it is the same plant. Okay, same plant. So this is gaetogamy. Now, whether you will call this is a self-pollination or cross-pollination? Sir, it can be called cross because on the same flower it's not same flower कुछ नहीं ना अलग-अलग flower है. Correct. So generally, you know, we use this term that it is a functionally cross-pollination and genetically it is a self-pollination. Okay, because it is the same plant, same genetic makeup, both the flowers. So the pollen from one flower is going to another flower, but it is the same plant. So genetically it is the same thing. But if you look functionally, or if you look in physical terms only, then it is a cross-pollination. Okay, so basically we will consider gaetogamy as a self-pollination or cross-pollination, which should be more appropriate? Sir, I think Cross-pollination. So let us see one by one what Anshi is telling. Sir, cross-pollination. Cross, okay. Manya? Sir, cross-pollination. Harshit? the same. So all of you are telling cross-pollination. Okay. So we should consider a fundamental thing, or we should consider ऊपर का चीज. देखिए कहीं पर भी हम लोग फंडामेंटल डिफरेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए. यहाँ पे gaetogamy को though it appears to be cross pollination, but fact is that it is self pollination because it is the same plant. It is the same plant. Therefore, whether it is autogamy or gaetogamy, both of these we will consider as a self pollination. देखिए क्योंकि ऑटोगैमी में ऐसे जस्ट सेम टाइप का मैं दिखा देता हूं, जैसे दो फूल है और एक ही फूल का ही पोलन उसके स्टेमन में आ गया. ओके, दैट इज ऑटोगैमी. यहाँ पे भी वही पौधा है लेकिन एक ही फूल का दूसरे फूल लेकिन उसी पौधा में. तो दोनों ही जेनेटिक में कोई चेंज नहीं आया, एक ही पौधा एक ही जेनेटिक मेकअप. सो देयरफॉर ऑटोगैमी gaetogamy both will be considered as the self pollination. ठीक है,
चलिए, और तीसरा जो है दैट इज एलोगैमी। एलो, एलो मतलब अदर। ओके, pollen of a flower falls on flower of another plant of the same species। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 पौधे लेने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 पौधे हैं और इसका पोलन, ए का पोलन बी में जा रहा है। ठीक है, अदर प्लांट में। ओके, इट इज गोइंग टू द अदर प्लांट, देयरफॉर इट इज अल्लो। अल्लो अदर प्लांट में जा रहा है, लेकिन स्पीशीज सेम होना चाहिए। अगर स्पीशीज डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा? Whether it will be called as a pollination? पॉलिनेशन होएगा ही ना। हाँ, पॉलिनेशन इज नॉट you see my question। देखिए, मेरा क्वेश्चन आपको समझिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ए और बी अलग अलग स्पीशीज है, यानी ए जो है वो पपीता है और दो जो है वो बी जो है वो मैंगो है। ठीक है, और इसका पपीता का पोलन जाके मैंगो के स्टेमन पे गिरा, क्या ये पॉलिनेशन है? नो सर। नो सर। क्या हमने डेफिनेशन में कहीं पे भी सेम स्पीशीज शब्द का प्रयोग किया है? नो सर। देखिए, डेफिनेशन इज वेरी क्लियर। डेफिनेशन सेज दैट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट्स ऑल। तो वो सेम स्पीशीज हो दूसरा स्पीशीज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पॉलिनेशन मतलब है कि पोलन जाके स्टेमन पे जाके गिरा, बस, तो वो पॉलिनेशन हो गया। तो क्या हम एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज पे अगर पोलन गिरता है उसको पॉलिनेशन कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे, बट कैन वी कॉल दैट इट इज ए क्रॉस पॉलिनेशन? Sir, but pollination it will be useless now. It won't It is result to a seed. yes, and yes. You see, the purpose of pollination is fertilization, correct? कि फर्टिलाइजेशन होगा तभी जो है एम्ब्रियो बनेगा, तभी वो सीड बनेगा, सीड से जो है आगे जाके जर्मिनेट होके पौधा बनेगा। तो द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन इज फर्टिलाइजेशन। If the pollination is not resulting in fertilization, then do you not consider the pollination as a pollination? Sir, Definition में तो ऐसा नहीं। kind of pollination. Yes, it's a kind of pollination. देखिए, डेफिनेशन में तो हमने नहीं लिखा कि भाई इट शुड कॉज फर्टिलाइजेशन, ऐसा करके हमने नहीं लिखा। बस हमने इतना ही बोला कि पोलन ग्रेन एंथर से जाके स्टिग्मा में बढ़ जाए, बस इतना ही है स्टेटमेंट, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। वो सेम स्पीसीज का है, दूसरे स्पीसीज का है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, इस सब कहानी से कोई मतलब नहीं है। अगर पोलन जाके दूसरे किसी स्टेमन पे जाके बैठा, वो पॉलिनेशन है। ठीक है, अगर वो दूसरे स्पीसीज का है तो क्या होगा? वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दैट इज क्लियर, बट इट इज स्टिल पॉलिनेशन। ठीक है, नाउ will you call that as a cross pollination? Yes, sir, cross. यहाँ पे आप कृपया ध्यान देंगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट एलोगैमी में क्या बता रहा है? ऑफ द सेम स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट। एज इट इज पॉलिनेशन के डेफिनेशन में कहीं पर भी स्पीसीज की बात नहीं आई है, लेकिन एलोगैमी में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दैट पोलन ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑन द स्टेमन ऑफ द अदर प्लांट, बट इट शुड बी द सेम स्पीसीज। ठीक है, तो एलोगैमी मतलब अदर प्लांट, बट स्पीशीज शुड बी सेम। देयरफॉर अगर एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज पे पोलन जाके गिरता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। ओके,
दूसरे स्पीसीज में जाके अगर पोलन गिरेगा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा. ओके, दैट इज द पॉइंट. सो ऑल ऑफ यू आर क्लियर विथ ऑटोगेमी, गिटनोगेमी, अलोगेमी? Yes. ओके, एनी डाउट? No, sir. चलिए तब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, we will look into the two types of pollination. One is a self pollination, one is the cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब यही हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दैट इज नथिंग बट ऑटोगेमी, और द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दैट इज नथिंग बट गिटनोगेमी. मतलब आप अगर ऑटोगेमी, गिटनोगेमी दोनों टाइप्स को ले लें, ये दोनों ही टाइप्स सेल्फ पॉलिनेशन है. करेक्ट? इट इज इजी. करेक्ट? तो सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट वाला सिस्टम के बारे में हम लोग बोल रहे हैं. सेल्फ. करेक्ट? तो what are the factors or features that are favoring self pollination? ये थोड़ा मैंने छोटा लिखा है, प्लीज. हाँ, that is a features favoring self pollination. There are 3 features जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी. क्या क्या कंडीशन है? एक है क्लिस्टोगैमी, बाइसेक्सुअलिटी एंड होमोगैमी. ये तीनों टर्म्स का जो है मीनिंग हम लोग को समझ में आना चाहिए. क्लिस्टो का मतलब है क्लोज्ड. क्लिस्टो गैमी मतलब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज मैरिज. ओके, सो क्लिस्टोगैमी, that is a self pollination that occurs within a permanently closed flower. So some flowers like the pea और pansy, ये टाइप के 2 फूल हैं, और भी कई फूल हैं. ये फूल कभी खिलते ही नहीं, ये बंद ही रहेगा, ये खिलेगा ही नहीं. अगर फूल बंद ही रहेगा तो पोलन जाएगा कहां? वो सर पोलन जा ही नहीं पाएगा, कहीं जा ही नहीं पाएगा. वो अपने ही फ्लावर के स्टेमन को जाके पॉलिनेशन कर देगा, और वो कहीं जा ही नहीं सकता है. तो ये जो टाइप का फीचर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड मैरिज. भैया क्लोज कर दिया तो कहीं बाहर जाने का मामला नहीं है. क्लिस्टोगैमी. अच्छा, एग्जाम्पल इज पी, पेंसी. नेक्स्ट, और क्या फैक्टर है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन फेवर होता है? बाइसेक्सुअलिटी. द प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आइदर ऑन द सेम फ्लावर और ऑन सेपरेट फ्लावर. बाइसेक्सुअलिटी. ओके, बाइसेक्सुअलिटी यानी इट इज लाइक अ हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, यानी एक ही इंसान या एक ही पर्सन जो है वो दोनों ही टाइप के गैमीट्स इट इज एबल टू प्रोड्यूस. ओके, सो हियर वी हैव, दिस इज द सेकंड फैक्टर. ओके, that is the bisexuality that favors self pollination. What is the third? Homogamy. Okay, homo मतलब same. Okay, तो anther and stigma if they are maturing at the same time, तो क्या होगा? ये फेवर करेगा सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. So 3 types are there. Cleistogamy, that is a closed marriage. Bisexuality, both male and female are produced either on the same flower or on separate flowers on the same plant. ठीक है. और तीसरा है homogamy. So these 3 features, what they do, they favor self pollination. So all of you are clear with that? क्लिस्टोगैमी भैया बंद रहेगा तो और कहां जाएगा?
दूसरा बाइसेक्सुअलिटी, अगर दोनों ही गैमिट्स बनाएगा तब ना उसको मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का चांस मिलेगा। अगर दोनों गैमिट्स वो नहीं बनाएगा तब तो किसी और पे निर्भर होना ही पड़ेगा। ओके, इसीलिए बाइसेक्सुअलिटी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, हाँ भाई मेल फीमेल दोनों बन रहा है, लेकिन अगर दोनों एक साथ मैच्योर ही नहीं होगा तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन का चांस भी कम हो जाएगा, इसीलिए होमोगैमी। ठीक है, सो दिस आर द 3 फैक्टर्स दैट फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ what are the advantages and disadvantages of self pollination? एडवांटेज है नंबर 1, पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड इन द ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या, अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग्स में प्रिजर्व होगा। देखिए जनरली इंडियन सिस्टम में मान्यता है कि मैरिजेस आर जनरली दे आर इन लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स विथ not close relation, that is with far relation. Why? Reason is that there should be more genetic diversity. The less the genetic diversity, the higher the chance of genetic problems. Okay, जैसे कि पुराने समय में something like in history you can see that when they are the close marriages, then they result in genetic abnormalities. Okay, therefore what happens is, if there is the self pollination, तो इसमें कोई नया जेनेटिक आ रहा है कि सेम प्लांट का जेनेटिक है सेल्फ पॉलिनेशन में? एनी गेस? सेल्फ पॉलिनेशन में जो है पेरेंट्स है, वो क्या आपको नया नया जीन्स आने का संभावना है उसमें? Sir, I don't think so. करेक्ट। अंश, व्हाट डू यू से? No, sir. मान्य? तो नया नया जीन्स जो है वो आने का संभावना सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं है, क्योंकि एक ही पेरेंट है, उसी पेरेंट का ही दोनों गैमिट्स बन रहा है, मेल फीमेल गैमिट्स वही फ्यूज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मतलब एक टाइप का है वही चलता रहेगा, वो एकदम प्योर लाइन वही चलता रहेगा, उसमें कोई नयापन नहीं आएगा। तो वही बता रहा है कि एडवांटेज में कि पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड। तो अगर पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व है तो इसमें क्या फायदा? देखिए कई बार क्या होता है कि जो प्लांट ब्रीडर है, जो कि नए नए वैरायटीज बनाते हैं अलग अलग फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, तो वो क्या करते हैं कि एक मेहनत करके एक वैरायटी बनाया, लेकिन जब वो वैरायटी बन गया उसके बाद अगर बार बार उसमें नया नया पोलन इधर उधर से आके उसके साथ क्रॉस होते जाएगा तो क्या होगा, उसका जो प्यूरिटी है, जो वैरायटी का प्यूरिटी है वो खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये ज्यादा फेवरेबल है कि जो पेरेंटल जेनेटिक है कॉम्बिनेशन वो प्रिजर्व किया जाए। तो दैट इज पॉसिबल विद सेल्फ पॉलिनेशन। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट, few pollens will suffice और few pollens are required। करेक्ट है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन तो या तो क्लोज रहेगा, बाइसेक्सुअल रहेगा, थोड़ा सा भी पोलन रहने से काम निकल जाएगा। कोई बहुत ज्यादा पोलन बना के भाई वो हवा से जाएगा, कोई पंछी लेके जाएगा, कोई इंसेक्ट लेके जाएगा, कोई पानी लेके जाएगा, ये सब का कोई टेंशन नहीं, तो थोड़ा सा पोलन में काम हो गया। फ्लावर्स नीड नॉट बी लार्ज एंड शोई, need not produce scent and nectar, okay, because simple self pollination,
कोई अट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, कोई इंसेक्ट को या कोई चीज करने का, पॉलिनेटर जब पॉलिनेटिंग एजेंट है उसके लिए कोई जरूरत है ही नहीं। सो इस कारण क्या होता है, थोड़ा उसको एनर्जी बचा लेता है, वो उतना ज्यादा एनर्जी उस पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 3 एडवांटेजेस है सेल्फ पॉलिनेशन का। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? देयर इज द लॉस ऑफ विगर इन द ऑफस्प्रिंग्स। तो लॉस ऑफ विगर, व्हाट डज इट मीन, लॉस ऑफ विगर इन ऑफस्प्रिंग्स? जब बार बार एक ही पेरेंट के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो द क्वालिटी ऑफ द सीड, द क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दैट वैरायटी ऑफ द प्लांट, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे कम होते जाता है। इसीलिए पुराने समय में भी जो एग्रीकल्चर करते थे लोग, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू कि आप जैसे कि राइस, सो राइस में उसका वो जो धान होता है, दे पुट दैट वन, राइट, आपका हो गया, तो दे स्टोर सम सीड फॉर द नेक्स्ट सीजन, बट after a few 1 or 2 years what they will do, they will exchange those seeds with someone else in the village कि भैया ये तुम मेरे पास सीड ले लो, तुम्हारा सीड हमको दे दो। तो इस तरीके से क्या करते थे लोग, उसको एक्सचेंज कर देते। दे डू नॉट अलाउ ओनली वन टाइप ऑफ वैरायटी। इससे क्या होता है कि जैसे जनरेशन होते जाता है उसका विगत कम होते जाता है। दूसरा, जेनेटिकली वीक और डिफेक्टिव कैरेक्टर्स कैनॉट बी एलिमिनेटेड। सो व्हाट इज हैपनिंग इज बिकॉज एक फॉर एग्जांपल वैरायटी मेहनत करके एक प्लांट ब्रीडर ने एक वैरायटी बनाया, अच्छा है, उसमें यील्ड बहुत है, ये सब चीज है, लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें हो सकता है कि किसी फंगस या किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस या किसी इंसेक्ट का जो है उसका रेसिस्टेंस कम है। तब क्या होगा, वो एक प्रॉब्लम है उसमें ना, एक डिफेक्ट है। तो नेचर में क्या होता है कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी अलग वैरायटीज के बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तब उसमें मिक्सिंग होता है, ये सब कैरेक्टर का मिक्सिंग होता है। इससे क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन और रोबस्ट और अच्छा बनने का उसको चांस रहता है। तो ये चीज जो है सेल्फ पॉलिनेशन में पॉसिबल नहीं है, सो दैट इज अ डिसएडवांटेज। As there is no genetic intermixing, new varieties are not formed. The same point. Okay, so you are all clear? You have any doubts in this advantages and disadvantages self pollination? You understood? Yes. Yes, sir. I was not too fast, right? You are all got the point. Okay, shall we move on to cross pollination? Yes. क्रॉस पॉलिनेशन यानी हाउ मेनी one plant is there or 2 separate plants are there in cross pollination? 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी, कितने भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये कि 1 से ज्यादा तो होना पड़ेगा, करेक्ट। एक प्लांट से आएगा और किसी और प्लांट पे जाएगा, भले वो दूसरा हो कि 10वां हो कि 50वां हो या कुछ भी हो। इट शुड गो टू अनदर प्लांट बट स्पीशीज हैज टू बी द सेम, ओके, बट द सेम स्पीशीज, ओके। Now, what are the features that are favoring cross pollination? Number 1, chasmogamy. Okay, chasmo. पहले था क्लिष्ट, बहुत क्लिष्ट, chasmo is like open marriage. So chasmogamy, it is
present in chasmogamous flowers. Chasmogamous flowers means the flowers which are very showy, they have open petals and the reproductive structures are open. Okay, it is not that the flower is closed and reproductive structures are not available for outside pollinating agents. So that is chasmogamy. Okay, so chasmogamy means open marriage, and example is oxalis. Okay, this is easy. Next, unisexuality. So सेल्फ पॉलिनेशन में हमने देखा बाइसेक्सुअलिटी, एक ही फूल या एक ही पौधे में दोनों गैमीट्स बनने चाहिए तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन में यूनिसेक्सुअलिटी ज्यादा बेटर होता है। एक पौधा या एक फूल एक ही टाइप का गैमीट बनाएगा तभी उसको जरूरत पड़ेगा कि भाई ढूंढिए दूसरे फूल को, दूसरे पौधे को। ठीक है, तो हियर उसको प्रमोट करना है, उसको फेवर करना है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, तो वी गो फॉर यूनिसेक्सुअलिटी। सो इफ both male and female gametes are there on the same plant, okay, for example that is in cucumber and gourd. Okay, gourd is like a snake gourd, this gourd, this lauki types जो भी है वो सब gourd family में आता है. Okay, or on separate plants like palm and papaya. Okay, so if the male or female gametes are present, are formed on separate flowers, okay, but on the same plant. You got my point? Male and female gametes produced on separate flowers, but plant is same. Okay, that is example cucumber and gourd. But male female flowers जो है separate plant पे है. देखिए पपाया एक टिपिकल एग्जाम्पल है. कई बार क्या होता है, लोग पपीता खाते हैं और उसका जो बीज है वो सोचते हैं कि भाई उसी को छींट देते हैं तो पौधा बन जाएगा, या वो जो खजूर खा लिया, सोचा भाई खजूर का जो सीड है उसको फेंक देते हैं या कुछ जर्मिनेट करा देते हैं तो पौधा बन जाएगा. तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये पपीता या खजूर, इसका जो पौधा बनेगा वो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है. अगर वो मेल निकला तो फ्रूट तो नहीं बनेगा, फीमेल अगर निकला तभी फ्रूट बनेगा. करेक्ट? सो व्हाट इट मींस मेल फीमेल, इसका मतलब है कि ओनली मेल फ्लावर्स आर फॉर्म्ड इन सर्टेन प्लांट्स एंड फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड इन सर्टेन प्लांट्स. So female flower में तुमको androecium will not be formed, there will be no stamen. Okay, there will be no stamen there. So unisexuality you have understood? Any confusion you have in unisexuality? No. Okay, so we'll move to third one. तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने 3 पॉइंट देखा था, हिस्टोगैमी, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी. उसका एकदम ऑपोजिट अभी क्रॉस पॉलिनेशन में क्या, प्लाज्मोगैमी, यूनिसेक्सुअलिटी एंड डाइकोगैमी. ओके, इधर डाइकोगैमी है और इधर होमोगैमी है. ओके, नंबर 3 होमोगैमी. ओके, तो डाइकोगैमी का मतलब क्या है, देयर इज अ डिफरेंट टाइमिंग ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ द एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. ओके, so but in homogamy androecium gynoecium are maturing the same time. If androecium or anthers mature before the stigma, that is proto-andry. Proto yani first, andry yani androecium. Easy. Okay, proto-andry, that is coming under dichogamy. Example, lady's finger, sweet pea, salvia. Protogyny. Protogyny is stigma matures before anthers. Example, custard apple, people. Custard apple, what do you call custard apple? Ananas.
You are able to get, no? Custard apple. What is custard apple? Okay. So the first 3 points, chasmogamy, unisexuality और dichogamy, ये तीनों exactly self pollination में जो 3 पॉइंट है उसका ऑपोजिट है, करेक्ट? Now 3 new points that are coming that favor the cross pollination are self sterility. What is self sterility? क्रॉस पॉलिनेशन करना है ना, तो एक तरीका यह है कि भैया सेल्फ स्टेरिलिटी कर दो, यानी अगर सेम प्लांट में ही पोलन आके डिपॉजिट होता है, that is if autogamy or geitonogamy happens, then it should result in sterile. So example, ray florets of sunflower and orchids. So orchids आपको पता है कि थोड़े से एक्सपेंसिव फ्लावर्स होते हैं, और ऑर्किड्स थोड़ा सा हाई आल्टीट्यूड्स में, हिली रीजियंस में थोड़ा मॉइस्चर वगैरह होता है, एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं, दूसरे पौधों के ऊपर वो ग्रो होता है, एक्सपेंसिव होता है, अच्छा वो एक्सपोर्ट वगैरह होता है फूल ऑर्किड्स। तो बहुत लोग सोचते हैं भैया ऑर्किड का थोड़ा सा कुछ अगर बनाया जाए तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इट्स नॉट लाइक भाई बीज लेके आया बना दिया जर्मिनेट कर दिया। ऑर्किड में ये है कि सेल्फ स्टेरिलिटी, ओके, so because there is a self sterility, so if a person brings only one purchase from the shop or anywhere एक पीस ऑफ प्लांट, ओके, और उसी पौधे को ग्रो कर रहा है, सोच रहा है, वो नहीं होता है, क्योंकि उसी का पोलन जब उसके इसमें होगा तो सीड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये एक चीज है जो कि ऑर्किड्स में और सनफ्लावर, ये दोनों में ही सेल्फ स्टेरिलिटी एग्जांपल आता है, ओके। नेक्स्ट, हेरकोगैमी, HERKO, हेरको, हेरकोगैमी, हेरको, some sounds like something like Hercules, okay, हेरको, Hercules, कुछ ना कुछ आपको मेकअप करना पड़ेगा स्टोरी हमेशा, सो हेरको, Hercules, something like that. So क्या कर रहा है, इसे हेरको is something like a barrier, okay, very strong, like a mechanical or structural barrier. So what this is doing is, this barrier does not allow the pollen to interact with the stigma of the same flower. For example, the hood covering the stigma on the barrier of the pansy, iris and pea. तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसमें जो स्टेमन है, स्टेमन के ऊपर एक इस टाइप का पेटल आ जाएगा, कवर कर दिया उसको, और जो एंथर है वो सब ऐसे ऊपर में है, तो क्या कर दिया, ये पेटल उसको ढक दिया स्टेमन को, और ये जो सेम फ्लावर में वो पोलन जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हेरकोगैमी, यानी एक तो बीच में जो पेटल आया वो हरक्यूलिस का काम कर रहा है कि भाई मैं तो जाने नहीं दूंगा, ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेम्बर, ओके, हेरकोगैमी। तो हेरकोगैमी होने के कारण क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। चलिए, उसके बाद हेट्रोस्टाइली, ओके, स्टाइल, इधर स्टाइल के ऊपर डिपेंड बोल रहे हैं अपन। हेट्रोस्टाइली, stigma and anthers grow at different heights which does not favor self pollination, ठीक है। तो समझिए स्टाइल का इतना ही हाइट है और जो है एंथर कहीं और एकदम हिमालय के चोटी पे रहेगा, तो जब इतना ज्यादा दूरी रहेगा द चांस इज दैट सेल्फ पॉलिनेशन का चांस बहुत कम रहेगा। सो दैट इज हेट्रोस्टाइली। चलिए, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन?
Chasmogamy, unisexuality, digogamy, self sterility, hercogamy and heterostyle. ठीक है, 6 पॉइंट आता है। पहला 3 पॉइंट, ये पहला 3 पॉइंट जो है एग्जैक्टली सेल्फ पॉलिनेशन का ऑपोजिट है। उसके बाद 3, 4, 5 ये यूनिक पॉइंट्स है सेल्फ पॉलिनेशन का, सेल्फ स्टेरिलिटी, heterogamy and heterostyle. All of you got this one? What are the advantages and disadvantages of cross pollination? So we already discussed about the advantages and disadvantages of self pollination. So this is about cross pollination. So cross pollination advantage क्या है? The offsprings are healthier. कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन हेल्दी होगा, क्यों? क्योंकि दूर का जेनेटिक्स है। क्योंकि जेनेटिक्स जो है दूर का है, सो न्यू कैरेक्टर्स they can join. Okay, so there is always, the more the genes will mix, you know, then there is a chance for a better combination. That's the simple idea here. The offsprings are healthier, the seeds produced are abundant and viable, okay, with cross pollination, and new varieties can always be produced because the different combinations can take place. What are the disadvantages? It does not allow, it's not always certain to occur. Yes, that is true. क्यों? क्योंकि जो पॉलिनेटिंग एजेंट है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अवेलेबल रहे. Okay, so there is always a dependence, so therefore there is a less chance. Next, it is uneconomical for the plant because large quantities of pollen need to be produced, flowers need to be large, colored, scented, produce lot of nectar. तो ये सब टाइप के जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा पड़ता है. क्रॉस पॉलिनेशन में ये थोड़ा ड्रामेटिक रहता है ना. सेल्फ पॉलिनेशन चुपचाप, फ्लावर बंद है, बाइसेक्सुअलिटी है, ओके, both the androecium gynoecium are maturing at the same time. All this kind of very simple. But when it comes to cross pollination, then lot of things are there. Flowers need to be large so that uska visibility badhe. The reproductive structures need to be available for the pollinating agents. तो ये सब चीज में क्या होता है, इतना सब चीज में कॉम्प्लिकेशन में, बड़ा चीज करने में एनर्जी का बहुत ज्यादा उसमें जाता है प्लांट का इसके ऊपर. ओके, सो दैट इज ओवरऑल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. सिंपल दिस वन. Next, there are a few terms which we are discussing about. What are the agents of cross pollination? अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहा है, then we say that is entomophilous. Entomophilous. If it is wind pollinated, we say it is anemophilous. Okay, philous means affinity, attraction, philly, okay, affinity. Okay, entomophily, insects, wind, anemophily, water, hydro, you can always guess, very easy. Bird, ornithology यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स. ऑर्निथो यानी बर्ड्स में आता है. Elephants can also do pollination. It is called elephophily. Okay, and sometimes humans by doing some design, because we always want to make some new varieties, then also we also do purposefully we do pollination. Okay, so that is called artificial pollination. Okay, or artificial crossing. चलिए, so we will look at what are the characteristics of these types of pollination. तो यहाँ पे होता क्या है, क्वेश्चन किस टाइप में रहता है कि आपको कुछ कैरेक्टर बताया जाएगा. ओके, जैसे कि फूल देखने में बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सारे रंग हैं, और जो है इसके ऊपर जो है जो पोलन है
वो पोलन जो है बहुत रफ है, स्टिकी है, डिजाइनदार है, इस टाइप में आपको कुछ कुछ फीचर्स बताया जाएगा, और उस फीचर्स को आप जब देखेंगे उससे आपको गेस करना है कि इसका पॉलिनेशन इंसेक्ट से है, विंड से है, वाटर से है, बर्ड से है, किससे? गॉट माय पॉइंट? सो सपोज ए फ्लावर has to be pollinated by insect. So generally it needs to be large, the flower needs to be large, brightly colored, क्योंकि बड़ा कलरफुल फ्लावर रहता है तो उसको इंसेक्ट देख के अट्रैक्ट होता है, एंड देन सेंटेड, खुशबू, बढ़िया खुशबू, और प्रोड्यूस नेक्टर, स्वीट नेक्टर, दैट्स ऑलवेज वेरी हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स. स्टिकी और स्पाइनी पोलन. The pollen grains, they have some kind of we saw as the last class exine and intine, right? पोलन के स्ट्रक्चर में एक्सिन, इंटिन हमने देखा था. तो ऊपर का जो सरफेस है वो बड़ा डिजाइनदार रहेगा, स्पाइनी स्पाइनी टाइप का या कुछ, या स्टिकी रहेगा. इन द केस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स. क्यों? ताकि जब इंसेक्ट नेक्टर लेने आएगा तो उसके बॉडी में चिपक जाए. ओके, सो दैट इज व्हाई यू नीड ए स्टिकी और स्पाइनी पोलन. Stigma is also sticky, so that whatever that insect is coming from one flower to another flower, it should be able to pick up that fresh pollen. Okay, so the stigma is also sticky, and the stigma is located a bit inside the flower. तो फूल है, फूल में वो जो स्टिग्मा है वो थोड़ा अंदर में रहेगा, तो क्या होगा, इंसेक्ट को पूरा ऐसे अंदर जाना पड़ेगा. हाँ, इससे क्या होता है कि ज्यादा चांस मिलता है कि दूसरे फ्लावर से जो उसके बॉडी में पोलन चिपका हुआ है वो उसमें थोड़ा सा ऐसे हिल विल के गिरे. ओके, दैट इज आल्सो वन फीचर. नेक्स्ट, यूजुअली दीज आर क्लस्टर्ड फ्लावर्स, पर्टिकुलरली छोटे फूलों में. तो छोटा फूल गुच्छे में रहता है तो बड़ा दिखता है, तो जो इंसेक्ट है उसको पता चले ओ यहाँ पे कुछ फूल है, सो इट विल. So that is, these are all properties of insect pollinated flower. Next, wind pollinated. Okay, hawa. So that is a wind pollinated, and this is water pollinated. Okay, and this is bird pollinated, and this is elephant pollinated. Okay, so wind pollinated flowers are small, they are not brightly colored, they are not scented. Okay, so the stamens are long and hang out. जो स्टेमन है वो बड़ा रहता है, हैंग आउट होता है. इससे क्या होगा, जब हवा चलेगा तो ज्यादा मूव करेगा, तब क्या होगा कि it is able to disperse in the air, so those pollen can scatter because it is wind pollinated. Okay, anthers are large and loosely attached to the filaments. Pollen produced in the large quantities. Okay, pollen is light, smooth and dry. Stigma is feathery. तो ये सब भी features जो है ना, that's very easy. You can also, and without much explanation, you can understand very easily. Okay, water pollination. Water pollination flowers are produced by pollen grains in large quantities. क्योंकि पानी में बहुत ज्यादा संख्या में करना पड़ेगा, तभी ज्यादा पोलन जो निकलेगा वो पानी में तैरते हुए दूसरे पौधे के पास वो जा सकता है. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट कैन फ्लोट. ओके, वैलिस्नेरिया इज वन एग्जांपल. इसमें क्या होता है कि पूरा जो फूल है, मेल फ्लावर, वो पौधा से टूट के पानी के ऊपर तैरते हुए जाते रहेगा. जब तक उसको सुटेबल फीमेल फ्लावर मिल जाएगा वो ऐसे नॉर्मली तैरता रहता है. सो इस तरीके से क्या हुआ, वैलिस्नेरिया इज ए स्पेशल केस. दिस इज आल्सो वाटर पॉलिनेटेड. बर्ड पॉलिनेटेड एग्जांपल बिग्नोनिया कैना. तो बर्ड पॉलिनेट में थोड़ा और बड़ा फूल रहता है ताकि वो sometimes it is able to accommodate the bird's beak and all. Have you heard this term Rafflesia earlier? Yes, sir. It's the largest flower.
It's the largest. So it smells like a rotten meat. Yes, correct. So it is pollinated by elephants. Okay, that is an example where elephant is doing the pollination. It is one of the largest flowers and therefore it needs a very large pollinator. Okay, so next, artificial pollination और artificial crossing. तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये लोग जब नया नया वैरायटी बनाना चाहते हैं बिना जेनेटिक्स के, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि दो अलग अलग टाइप का समझिए कि सब्जी है, जैसे कि टमाटर। टमाटर क्या होता है कि कुछ टमाटर आपको चाहिए कि ज्यादा दिन तक खराब नहीं हो, और कुछ टमाटर आपको चाहिए जिसमें कि खूब जूसी रहे। तो कुछ नया नया वैरायटी आदमी बनाना चाहता है, तब क्या करता है, दो अलग अलग वैरायटी लेता है और उसको जानबूझ के स्पेसिफिक एक का पोलन लेके दूसरे के स्टिग्मा में देना होता है। ओके, तो इसके लिए क्या होगा कि आपको दो स्टेप होते हैं मेन। एक होता है इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन। सो मैस्क्यू मतलब बोले समथिंग लाइक मसल मैस्क्यूल, अंकल टाइप्स। सो इमैस्क्यूलेशन यानी हटाना। क्या हटाना? रिमूवल ऑफ एंथर्स। ओके, इमैस्कुलेशन मींस रिमूवल ऑफ एंथर्स। अगर फ्लावर में आप एंथर हटा दोगे, इसका मतलब आप मेल पार्ट हटा दिए, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेल पार्ट हटा दिए, उसके बाद ऊपर से एक प्लास्टिक का बैग से बंद कर दिए फूल को। इससे क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होगा क्योंकि आपने एंथर हटा दिया, बैग से बंद कर दिया, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको जिस वैरायटी का पोलन उसमें देना है वही पोलन आप लेके आएंगे, बैग हल्का सा खोल के उसको डस्ट कर देंगे, फिर बैग बंद कर। ओके, ये सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा लेबर ज्यादा लगता है इसमें काम। ये होता है आर्टिफिशियल क्रॉसिंग या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ओके, सो all these points are clear, right? These are not very complicated, these are very simple, right? Both of you got these things, right? Any doubt in this? Yes.